A very good morning to all my lovely patines. So I am back with your computer class. So today we are going to revise chapter 6 for your quiz. Okay. So आज हम क्विज के लिए चैप्टर 6 रिवाइज करेंगे विद रिवीजन वर्कशीट एंड along with it I am going to explain you the computer activity for your EV3 exam. Okay. So everyone just focus and let's start the revision worksheet, and after the revision worksheet we are going to discuss about the computer activity. Okay, so let's start. So this is the revision worksheet, okay, of chapter 6. So first is take the correct answer. So read the first one. Dash is an example of word processing software. So you have three options and you have to choose the one. Out of these, which one is the example of word processing software? इनमें से word processing software का example कौन सा है ये आपको बताना है. First is MS Paint, second is PageMaker, and third is Photoshop. So what will be the answer? Yes, everyone. Raise your hands, those who know the answer. Yes, Ansh. What is the answer? PageMaker. Very good. PageMaker is the correct answer. Okay, so everyone tick on the PageMaker. So this is the correct answer. Okay, now come to the next one. Shortcut key to open a file is dash. So अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल ओपन करना है जो ऑलरेडी सेव्ड है, सो उसके लिए आप क्या शॉर्टकट की यूज़ करोगे? CTRL+O, CTRL+P, CTRL+S. So what will be the answer? Yes, raise your hands everyone. Yes, Yash. What is the answer? CTRL+O. Very good. देखो आप ईज़िली लर्न कर सकते हैं कैसे. लाइक ओपन करने के लिए है, सो ओ फॉर ओपन, सो CTRL+O. सो टिक ऑन द फर्स्ट वन. ओके, और इसीलिए इसी तरह से आप इन द सेम वे यू कैन लर्न फॉर CTRL+S. किस लिए होती है? टू सेव अ डॉक्यूमेंट. S फॉर सेव, तो CTRL+S. और प्रिंट करने के लिए CTRL+P, P फॉर प्रिंट, तो CTRL+P शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. डैश इज़ अ वाइट एरिया टू टाइप टेक्स्ट. सो जो आपको वाइट एरिया नज़र आता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, सो उस वाइट एरिया को हम क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर टाइटल बार, डॉक्यूमेंट एरिया, रिबन. सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी, yes everyone, raise your hand those who know the answer. Yes, Arav. The answer is document area. Very good. So tick on the document area. Okay, now come to the next. Write true or false for the following. First is डबल माउस क्लिक्स आर नीडेड टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ. अगर आपको कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इज़ इट फॉल्स? अगर हमें कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम ट्रिपल क्लिक करते हैं. सो यू हैव टू राइट कैपिटल F. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. टाइटल बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो. टाइटल बार अब आपके वर्ड विंडो के बॉटम पे होता है. सो इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? येस एवरीवन, रेज योर हैंड दोज हु नो द आंसर. येस अर्नव. फॉल्स. वेरी गुड. द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज टाइटल बार इज द टॉप मोस्ट बार ऑफ एनी विंडो. टाइटल बार क्या होता है? टॉप मोस्ट बार होता है. ओके,
Now the next one. Shift plus home key is used to select line to its end. सो शिफ्ट प्लस होम शॉर्टकट की जो होती है वो हम लाइन को उसके एंड तक सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? येस, टेल. रेज योर हैंड्स एवरीवन. येस, हर्षित. द आंसर इज false. Very good. The answer is false. So we'll write again here capital F, because as it's written home, तो home है तो हमारी जो लाइन सेलेक्ट करते हैं हम वो क्या होगी, बिगनिंग तक. और अगर यहाँ पे एंड लिखा होता होम की जगह, देन व्हाट विल बी द आंसर? देन इट विल बी ट्रू. ओके, होम प्लस एंड की इज यूज्ड to select line to its end. Okay, now coming to the next one. Quick access toolbar is present on the title bar. Quick access toolbar title bar पे होता है. Is it true or false? Yes, everyone, those who know the answer, raise your hands. The answer is yes. Yes, Himesh. The answer is true. Very good. The answer is true. So write down capital T. Now come to the C part. Answer the following questions. First is define the term document. आपको डॉक्यूमेंट को डिफाइन करना है. डॉक्यूमेंट टर्म को, डॉक्यूमेंट क्या होता है. एंड सेकेंड इज व्हाट इज द यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल रूलर. हॉरिजॉन्टल रूलर का क्या यूज है, दैट वी हैव टू राइट हियर. ओके, सो डॉक्यूमेंट क्या होता है. डॉक्यूमेंट इज अ पीस ऑफ रिटन मैटर विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन. ओके, सो विल राइट द आंसर हियर. Document is a piece of written matter. written matter means जो भी टेक्स्ट आपने राइट डाउन किया है, दैट written matter that provides information. Okay, so you have to write this answer. नाउ हॉरिजॉन्टल रूलर का क्या यूज़ है. हॉरिजॉन्टल रूलर से हम क्या करते हैं. हॉरिजॉन्टल रूलर इज यूज टू सेट द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. सो विल राइट हियर horizontal ruler is used to set the left and right margins. Okay, this you have to write. If anyone is having any query in this revision worksheet or any doubt related to this chapter, then you can ask without any hesitation. I am here to help you. Okay, so you can ask if you are having any query, any doubt. No one? Okay, so just be prepared for your कंप्यूटर क्विज़ इन द इवनिंग. उसके लिए रेडी रहना. 5 मार्क्स का आपका क्विज़ होगा. ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑटो करेक्ट ओनली. सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. 10 क्वेश्चन ईच, हाफ मार्क ईच. ओके,
सो अच्छे से रीड करना है हर एक क्वेश्चंस को एंड देन ओनली यू हैव टू गिव द आंसर. ओके, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. सबको अच्छे से रीड करना है आपको और फिर अटेम्प्ट करना है ध्यान से. ओके, कोई भी गलत नहीं करना है. और चैप्टर को भी अच्छे से रीडिंग करनी है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इंटरनल विल ऑल्सो कम. ठीक है, इंटरनल भी होंगे आपके एग्जाम में, तो चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है. ओके, वट एवर इट इज़ गिवन आपको सारा रीड करना है अबाउट योर चैप्टर. ओके, सारे MS वर्ड के कंपोनेंट्स एंड शॉर्टकट कीज, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न. ओके, सब कुछ कवर करना आपको चैप्टर में. सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू.